Now matter is to be raised with permission. 0 hour. हम लोगों ने आज एक मैटर उठाया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंग्रेजी अनिवार्यता के विरोध में। छात्र लोग हड़ताल पे बैठे हैं, तमाम लोग जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राज्य मंत्री जी ने पिछली बार छात्रों को आश्वासन दिया कि वो अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करेंगे, इस हमारे अनुसरण नहीं हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वो गिरफ्तार हुए। राज्य मंत्री को कोई अधिकारी नहीं। श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने राज्य मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने राज्य मंत्रियों को कोई अधिकारी नहीं दिया। ये बेरोजगार है। If all of you say, how can I understand what you are saying? If all of you together say, what? Yes, one of you say. Yes, Mr. Raji, what is up right here? Let me. Sure, a statement would come at 12 o'clock. We are waiting for. Okay, then you take your seat. Yeah, after I say, I will allow you. See, regarding the subject raised by you, that is a language problem. UPSC, I know. Already there was a statement in this house. The statement was laid on the table of the house. Clarification can be sought. I think the minister is available. Yes, minister is available. After 0 hour, I will allow clarification. Now, okay, you are now. Oh, all right. Yes. Okay. Pardon? स्टेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने स्टेट मिनिस्टर को बेरोजगार कर रखा क्या है। है? उनके पास कोई रोजगार है ना आप उनके नरेश जी बैठिए, शरद यादव जी, नरेश जी बैठिए, बेरोजगार शरद यादव जी, आपको क्या बोलना है? राज्य मंत्री, अल्कोहल बेरोजगार राज्य मंत्री, मैं बड़ा साफ कह देता हूँ। बैठिए, क्या है? See, minister is available. सभापति जी, मंत्री महोदय इधर बैठा है. Deputy Chairman, please. Please. We have to transact the business. If the House want to take up first that clarification, the government has no problem. Yeah, that or is if you want to take the 0 hour and then clarification, we have no problem. So one thing, थोड़ा बैठ लीजिए please. Yeah, सुनिए मंत्री. But sir, on the same issue, a suo motu statement was made by the Minister DOPT, Sri Jitendra Singh ji earlier. Now subsequently, the agitation is still continuing outside. The government also is aware of the fact students are agitated. And the committee has been appointed for this purpose to examine these aspects and then how to allay the apprehensions of the students. So the minister will give all the clarifications. Yes. It is for the chair Why not to we decide. go for whether you want it clarification? now or afterwards you decide. Yeah, clarification. मंत्री शरद जी, मंत्री से पूछिए clarification. जो व्याख्या नरेश जी ने किया, ऐसा व्याख्या नहीं करना चाहिए. आप भी मंत्री रहा, फिर मंत्री नहीं रहने के बाद बेरोजगार होता है क्या? तो फिर भी मंत्री जी है, इसलिए कृपया ऐसा शब्दावली प्रयोग मत करिए. मेरा विनती है, आप सीनियर है, आपको कोई कहने की जरूरत भी नहीं है. मिनिस्टर इज a minister and is an honorable minister and is also well educated also in every subject. No, please. No, let. आपकी सरकार के No, I will allow clarification. राज्य मंत्रियों के No, let us start. किया गया, इस बारे में मैंने बात उठाई। Mr. Naresh, let us. शरद जी, why not we start clarification? Clarification शुरू हो जाएगा. एक बात सुनिए, आपको first opportunity देगा. एक बात सुनिए, Give them. एक मौका दिया Yeah, आपको देगा. No, we will. हाफ ए मिनट. No, I will allow you clarification. I am asking. No. स्पष्टीकरण पूछना चाहिए. चर्चा स्टेटमेंट हो चुका है. Now, Sharad ji, excuse me. What I am saying is, you want to raise the same issue. The minister is there. We can ask clarification. I am calling Sharad ji first for asking clarification. Yes. Give me names. Send me names. Name. मेरी नोटिस है, मेरी नोटिस है। Yeah. Okay. Sharad ji बोलिए. I will call. Yeah. ठीक है. बैठिए ठीक. डिप्टी आप चेयरमैन साहब, पूछिए. बोलिए. डिप्टी चेयरमैन साहब, नाम लिखो. अरे बुलाएगा, आप उधर बैठो. उत्तराखंड के साथ
हम आपको बुलाएगा, वापस आइए, बैठिए। क्या चाहिए? आनंद शर्मा, एक बात है। अरे अब आइए। क्या बात है भाई? डिप्टी चेयरमैन साहब, पूरा नाम लिखो। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किस तरह देश की जो बोली है, माँ की बोली, माँ की जीभ जो है वो कैसे काटी जा रही है। सिर्फ मैं आंकड़े आपको देता हूँ। यानी 2008 में तमिल के जो विद्यार्थी हैं, तमिलियंस जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 2008 में 98, 2009 में 90, 2010 में 38 और 2011 में 14। कन्नड़ के जो विद्यार्थी हैं 2008 में 14, 2009 में 11 और 2009 में 11 और 2011 में 5। तेलुगु के विद्यार्थी 2008 में 117, 2009 में 89, 2010 में 69, 2011 में 29। हिंदी के 2008 में 5,82, 2009 में 4,839, 2010 में 4,156, 2011 में 1,062। और इंग्लिश के विद्यार्थियों की हालत देखिए। 2008 में 5,817, 2009 में 6,244, 2010 में 7,239 और 2011 में 9,203। अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गए। यानी भारतीय भाषाएं जो हैं आज़ादी के बाद से अंग्रेजी बनाए रखने के लिए ये तमिल के मेंबर्स बैठे हैं। ये तमिलियंस की हालत जो है वो अंग्रेजी के चलते ये हुई है। यानी कहाँ से वो 98 थे, आज आपकी भाषा के 14 विद्यार्थी आ रहे हैं। सुनिए, नहीं सुनिए, अपनी बात कह दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो धरती की बोली है, याद रखना डिप्टी चेयरमैन साहब, दुनिया में कोई देश ट्रांसलेशन में नहीं बढ़ेगा। ये देश जो है ट्रांसलेशन में, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी बोली में और भाषा में बोलूंगा, मुझे सुकून हुआ। गृह मंत्री ने कहा, मुझे सुकून हुआ। लेकिन ये विद्यार्थी 15 दिन से 20 दिन से जिस तरह से तबाह और बर्बाद किए जा रहे हैं, और कल जिस तरह से इनको छाया के लिए एक ऊपर छत नहीं दिए जा रहे। मैंने लिखा कमिश्नर को, तब क्यों नहीं मिले? और ये सारे एमपीज हैं, जितने लोग बोल रहे हैं, ये नौजवान जो है वो हर घर पे 50 लड़के, 20 लड़के, 30 लड़के खड़े हैं। आपसे जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, आपसे मैंने खुद बात की, लेकिन ये एडमिट कार्ड निकल गया ऑनलाइन। इसका मतलब है एग्जाम शुरू हो गया है। आप सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन वाली बात को टालिए, उसको खत्म करिए, तभी यह सवाल हो सकता है कि आप सीसेट के मामले में पुनर्विचार। ये कमेटी कब लाएगी? जब ये परीक्षा का, एग्जाम का सिलसिला शुरू हो गया। इस ऐवान में आप ये बताइए जवाब देते समय कि आपके जवाब से इन लड़कों का भविष्य बन जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड दिए गए हैं उनको तत्काल वापस करो और इसके बाद इस कमेटी का नाम कहो, तब इस कमेटी का मतलब होगा। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। Okay, thank you. Now I would request, see, I have noted the names. No, yes. See, my humble request is, ask clarification, confined to 2 minutes. 2 minutes. So, Sri Sadish Chandra Misra, I am calling you. Your name is? आ जाता आपका भी। I have written all names. मान्यवर, Yeah.
मैं जो ये मुद्दा चल रहा है इसमें पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आज बच्चे आंदोलित हैं और उनके ऊपर किस तरीके से बर्बरतापूर्वक कल उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और वो भी कब उनको आना पड़ा सड़कों में, जब मजबूरी में आना पड़ा। उनको ये लगा कि उनके साथ वादा खिलाफी हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है। अभी ऑनरेबल श्री वेंकैया नायडू जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको रिकंसिडर करने के लिए कमेटी बैठा ली गई है और कमेटी इसमें कंसिडर कर रही है। अगर कमेटी बैठा ली गई है, कंसिडर कर रही है, तो आपको ये बयान देने में क्या दिक्कत हो रही है माननीय मंत्री जी कि आप एडमिट कार्ड जो जारी हो रहे हैं उनको आप रोकने का काम करिए। जैसा कि माननीय शरद यादव जी ने कहा, आप इसको एडमिट कार्ड दे करके अगर आपने एक कमेटी बैठा ली है उसका शीघ्र निर्णय ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जैसे कमीशन बैठा ले जाते हैं, कमेटी बैठा ली जाती है सिर्फ इसलिए कि मैटर को डिफ्यूज़ कर दिया जाए और डिफ्यूज़ करने के बाद उसको एक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए। ये ऐसा विषय नहीं है। ये हर घर से, हर जगह से नौजवान लोग जिन्होंने जो आपकी तरफ निगाह बढ़ा करके देख रहे थे, बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि आप उनका ख्याल रखेंगे, आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसकी जगह कि वो अपना इम्तिहान की तैयारी करें, वो अपने एग्जाम की तैयारी करें, वो आईएएस और आईपीएस के लिए तैयारी करें, उसकी जगह आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़क पे खड़े होकर के और आंदोलन पे उतरें। और आप जानते हैं कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आपने इस तरह का, जिस तरह का सिस्टम रखा हुआ है, इसमें जो एक कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा पढ़ा होता है और एक जो एक दूसरे स्कूल, हिंदी स्कूल से पढ़ के आया होता है, उसका डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और इसका कोई वहाँ पर अगर आपने इस विषय को ख़त्म न करके और आपने इस मुद्दे को डिफ्यूज़ करने की जगह इसको और बढ़ाने के लिए इस तरह से एडमिट कार्ड को ऑनलाइन में डाल करके आपने पूरे देश को आपस में आंदोलित करने किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको तुरंत रोकें और रोकने के साथ साथ में एडमिट कार्ड वापस ऑनलाइन जो है उसको कैंसिल करा करके इस कमेटी से कहिए कि 3 दिन में अपना निर्णय दे और इसमें जो बच्चे लोग हैं उनको भी बुलाइए, उनकी बात भी सुनिए और उनको सुन करके आप एक निर्णय ऐसा लीजिए जो सबको मान्य हो और जिससे कि सुकून हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। now Shri नरेश अग्रवाल, सिर्फ 2 मिनट। माननीय सभापति जी, 2 मिनट। मैंने बेरोजगार शब्द इस मारे कहा था कि माननीय मंत्री जी ने पिछली बार लड़कों को बयान दिया था और ये कहा था कि हम 1 हफ्ते में इस विवाद को समाप्त कर देंगे, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जो कमेटी बैठी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कल जो घटना घटी उसकी जिम्मेदारी सरकार की, लड़कों की नहीं है। ये तो लग रहा है कि जैसे सरकार कहीं मजबूर दिखाई दे रही है। श्रीमन, इतना बड़ा देश के साथ अन्याय हो रहा, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी, खाली हिंदी का सवाल नहीं, सारे देश की भाषा जो रीजनल है, चाहे बंगाल की हो, चाहे तमिल की हो, चाहे आंध्र प्रदेश की हो, सबके लड़कों की क्या स्थिति आ रही यूपीएससी एग्जाम में। शरद जी ने बताया, एक उन्होंने आंकड़े दिए। लेकिन ये सरकार, आपके एमपी मनोज तिवारी जी लड़कों के बीच में गए, लोकसभा के एमपी हैं, उन्होंने जाके खुलेआम आश्वासन दिया कि आप लोग तोड़ दीजिए हड़ताल, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी सरकार है और ये एग्जाम नहीं होंगे जब तक रीजनल लैंग्वेज नहीं अलाउ की जाएंगी। लड़कों ने तोड़ दिया। क्या बात हो गई? आपका एमपी, आपका मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने खुद पिछली बार बयान दिया था, आज फिर ये बयान मजबूरी का देने जा रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को बुलाइए या लीडर ऑफ द हाउस बोले, सीमन ये मान लीजिए अगर आपने स्टेटस को नहीं किया, जो एडमिट कार्ड निकले अगर आपने नहीं रोका, आप मजबूरी में अगर दिखाते रहे, आपने अगर सरकार कमजोर दिखाने की बात करी, तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा। आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा, क्योंकि पूरे देश का सवाल है, ये खाली हिंदी भाषियों का सवाल नहीं है। और उस आंदोलन की जिम्मेदारी होगी आपकी। आपके दल के भी सदस्य इस बात को जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषा की उपहास अगर किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा ओथ लेने के बाद कि हिंदी को प्राथमिकता देंगे, उन्होंने डायरेक्शन जो दी है कि हमारी सरकार हिंदी में काम करेगी, वो डायरेक्शन बेकार हो गए। मेरी एक ही मांग है, माननीय मंत्री जी, ये मजिस्ट्रेटी जांच जो होती है ना हम लोग के यहाँ, कोई मामला डाइल्यूट करना तो मजिस्ट्रेटी जांच बैठा दीजिए, मामला ये कमेटी न बैठालिए, ये मजिस्ट्रेटी जांच न बताइए। आप आज स्पष्ट आदेश दीजिए कि रोका जाता है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा। कमेटी की बैठी, एडमिट कार्ड आप फौरन रिजेक्ट करिए और उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए,
आप सरकार हैं, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमसे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे होगा। अरे हाँ, सरकार हमने भी चलाई, कैसे होता? सरकार सरकार है, सरकार से कोई लड़ पाया? Okay. तो मैं चाहूंगा इस पर आंसर मिले, नहीं तो श्रीमंत सदन नहीं चलेगा। ये मैं आपसे कह देता हूं, धन्यवाद। मैं तकलीफ के साथ इस बात को ओके, धन्यवाद। श्री सतीश चतुर्वेदी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, सभापति जी धन्यवाद है। नहीं सदन नहीं गिरेगा प्लीज। भाई, आज का विषय नहीं है, नहीं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये कब से शुरू है बाद में मालूम पड़ेगा। डोंट रिप्लाई नाउ प्लीज, रिप्लाई इन द एंड। यस सभापति जी, हम आजाद तो हो गए थे संवैधानिक रूप से 1947 में, लेकिन वो आजादी आज भी अधूरी है। किसी संप्रभु राष्ट्र को, किसी स्वाभिमानी राष्ट्र को अपनी भाषा में काम करने का अवसर ना हो, छूट ना हो, और हम आज भी इतने वर्षों बाद एक विदेशी भाषा पर उसकी बैसाखियों पर सवारी करते जाएं, इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए क्या होगी। श्रीमान, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, नाउ प्लीज, भारत के हमारे राजभाषा, प्लीज लिसन नाउ प्लीज, मिस्टर मिनिस्टर प्लीज, मिस्टर जावड़ेकर, डोंट टॉक लाइक दैट, मिस्टर मिनिस्टर प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। यस प्लीज, श्रीमान, भारत के राजभाषा Please, अधिनियम please. के अंतर्गत, प्लीज। भारत के राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस देश की केंद्र सरकार की सभी संस्थाओं में, विजय गोयल प्लीज। एक मिनट, नो, वी हैव नो टाइम। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सक्षम हूं। विजय भाई, अगर आप इस तरह से बात बीच बीच में करेंगे तो आपके यहां से भी बोलने वाले खड़े होने वाले हैं, याद नो रखिए। प्लीज बोलिए। राजभाषा please. अधिनियम के अंतर्गत हमने ये प्रावधान किया, इसी संसद से हमने कानून पारित किया, और हमने ये प्रावधान किया है कि भारत सरकार की सेवाओं में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हिंदी में काम करना अनिवार्य होगा, और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इस देश को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग श्रेणियों के राज्यों में विभाजित करके। हिंदी अकेली नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है, हमने कानून बनाया है, उसका हमारे सम्मान हो, ये अपनी जगह है, लेकिन इस देश के तमाम भारतीय भाषाएं और भी, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, असमिया है, बांग्ला है, तमाम भाषाएं, पंजाबी है, वगैरह वगैरह, इन सारी, मराठी है, सभी भाषाएं हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं। क्या उनको अपनी भाषा में कामकाज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? आज भी अदालतों में, सरकारी दफ्तरों के अंदर उन्हीं भाषा पे काम होगा जो विदेशी भाषा है। इस बात के लिए हमारा राष्ट्र गौरव कहां चला गया? हम आज यही पूछना चाहते हैं, वो बच्चे जो भारतीय सेवा में, भारत सरकार की सेवा में अपना चयन कराने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, उनको हिंदी में अपना अधिकार नहीं है अपने जवाब देने का, लिखने का, अंग्रेजी में लिखना उनके लिए अनिवार्य बना दिया गया। भारतीय अन्य भाषाओं की भी उपेक्षा हो रही है। हम यहां यही चाहते हैं, जब मंत्री जी ने जाके उन्हें यह आश्वस्त किया था कि जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा, तब तक वो परीक्षाएं घोषित नहीं होने देंगे। अभी उसके बाद यूपीएससी ने परीक्षाएं घोषित कर दी। हम जानना चाह रहे हैं मंत्री जी से कि ये बताएं कि वो कब तक, किस तारीख तक इस समस्या का समाधान खोजेंगे और भारतीय भाषाओं सहित हिंदी में अपनी परीक्षा देने का अधिकार विद्यार्थियों को कब मिलेगा, ये जानकारी डेरिक Sir, on the minister's statement, I have 3 quick points to make. 2 minutes only, eh? 2 minutes, sir. Bangla bolbo. Because this country is so great that even though English is my mother tongue, I first learned to speak in Bengali by choice. English is my mother tongue, but I first learned to speak in Bengali. The 3 quick points. First, to the minister through you, sir. Please stop this television bitification of parliament. If serious issues have to be made, statements have to be made, we urge the minister to make those statements on the floor of parliament. But the minister has done this before
on some other issue concerning 3 numbers. I will not get into that, but those statements should be made on the floor of Parliament, not to television studios. He can make it later. Number 2, my own leader Mamata Banerjee has shown the way where when it comes to railway exams, people were given the opportunity to write those exams, do those exams in a language they are comfortable in. Sir, this is not an issue of English versus Hindi, certainly not. This is an issue regarding all the languages. In the campaign of the BJP before the election, we heard a lot about connecting with the youth of India. If you really want to connect with the youth of India, reconnect, do it now, maintain status quo, because young people around the country are watching you, are watching us. We need to act on their behalf. We need to act now. Sri Mudugarappan. Only 2 minutes. Okay, sir. May I please, sir? The civil service examination is conducted by the Union Public Service Commission, sir, which is conducted on 3 stages, sir. The one is the preliminary examination, another one is main examination, third one is the interview, sir. The preliminary examination is concerned to honor which is written either in Hindi or English, sir. The main examination is concerned is allowed to write in Hindi and English and other regional languages also, sir. First of all, sir, the preliminary examination written of only 2 languages, that is Hindi and English, sir. So the regional languages oriented students are like Tamil, Malayalam, Kannadam, Telugu and so on, sir, is reduced or filtered in preliminary examination, sir. Further, sir, my party is concerned. The preliminary examination of Union Public Service Commission should be allowed to write in regional languages, especially in Tamil, sir, including all languages, sir. Because this will create more results to all over states, including Tamil Nadu, sir. So these skilled and able personalities will be got more chances, sir. Furthermore, sir, the preliminary examination is having the 2 papers, sir. One is the general studies and another one, the civil service aptitude test, sir. These are 2 examinations to be conducted in regional languages, sir. The AIDMK and the Tamil Nadu is concerned, sir. We are having 2 language policies, sir. One is Tamil, another one is English, sir. The preliminary examination must be allowed to write in regional languages, including Tamil, sir. Thank you very much, sir. Sri Naqvi. सभापति महोदय, यूपीएससी की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल के संबंध में जो छात्रों की मांग है, हम समझते हैं कि वो मांग जायज़ है। और आज जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में हमारे नौजवानों में आक्रोश है, गुस्सा है, वो भी जायज़ है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि सरकार ने उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ लिया है। उपसभापति महोदय, किसी भी भाषा, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, जितनी भी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं के आधार पर हम मेरिट डिमेरिट का हिसाब किताब नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारी मेरिट और डिमेरिट भाषा के आधार पर तय होती है। अगर हम अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो हम बहुत काबिल हैं, अगर हम क्षेत्रीय भाषाएं बोल रहे हैं तो हम जाहिल हैं। ये जो एक चलन और चोचला है सर, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। अंग्रेज़ी से दुश्मनी नहीं, अंग्रेज़ी ज़रूरी है और अंग्रेज़ी एक कम्युनिकेशन की भाषा है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हमारे दिल और दिमाग और हमारे शरीर में बसी हुई हैं, हमारी मट्टी की उसमें सुगंध है। और इसलिए जो है हमें उसके साथ न्याय करना चाहिए। ये बात सही है कि इस सरकार का एक महीना हुआ, करे कोई भरे कोई वाली स्थिति है। जो कुछ आप करके गए उसे भरना पड़ रहा है। उस समय भी आपने जितनी जोर से हमारे छत्रपति जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगर उतनी जोर से उस समय, जिस समय आप सरकार में थे, कहते कि नहीं, जो छात्र कह रहे हैं, जो यूपीएससी में क्षेत्रीय भाषाओं और की बात हो रही है वो बिल्कुल सही है, उसको जायज हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सर मैं नहीं कहते, तब भी कहते। प्लीज चलिए, आप कहते रहे, आपकी बात नहीं चली।
कम से कम हम कह रहे हैं, देखते हैं चलती कि नहीं चलती। Now, Shri Chaturvedi, please. तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से 18 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने बयान दिया था कि क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं को जायज़ हक दिलाए जाने के बारे में, यूपीएससी एग्जामिनेशंस में उसके प्राथमिकता के बारे में, तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी उस दिशा में और ये सरकार उस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी। और जो छात्रों की मांग है, न केवल छात्रों की मांग, ये देश की चाहत है और देश की मांग है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। Shri Tapan Kumar Sen. Tapan Kumar Sen. डिप्टी चेयरमैन सर, मेरा यही बोलना है, जो ये समस्या आज नए पैदा नहीं हुआ, ओवर द पीरियड ये एक्यूमुलेट होते होते इसी जगह में आया। आई रिमेंबर, कम से कम आई हैव रिटन टू डीओपीटी मिनिस्टर एटलीस्ट 4 टाइम्स, सारे डिटेल देते हुए, जो कैसे रीजनल लैंग्वेज का पार्टिसिपेशन घट रहा है, एंड नॉट ओनली रीजनल लैंग्वेज, माइनॉरिटी का पार्टिसिपेशन इन यूपीएससी प्रोसेस से घट रहा है। And my latest letter was also marked to Minority Affairs Minister sitting over here. I checked up with him and he has referred to DOPT. हुआ नहीं। और इसमें ये ब्लेम गेम करने का फायदा नहीं है, जो आपने नहीं किया, हुआ नहीं। अरे because of the police, because of the peculiar pro-corporate elitist paradigm में हमारे सारे पॉलिसी फिलोसफी जो चल रहा है, ये उसका शिकार है देश का आम गरीब जनता। और ये ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को एक एलिटिस्ट मोनोपोली बनाते हुए वो कॉर्पोरेट और पैसे वाला के फेवर में चलता है। देयर मस्ट बी ए ब्रेक। आई वेलकम when the people have come on the street, agitated, come to the notice of the people, and government has decided to appoint a committee. I must say that action must start now. Committee कीजिए, please examine it. प्लस साथ साथ एक्शन होना ये जरूरी है। जो अभी एग्जाम बंद कीजिए, ये मैसेज जाना जरूरी है सबको पास, जो वी आर सेंसिटिव, पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू दिस मोस्ट सेंसिटिव इश्यू ऑफ द पीपल। अब एग्जाम बंद कीजिए, एडमिट कार्ड बंद कीजिए, हम जैसे शरद जी बोला ये ऑनलाइन वाला चक्कर बंद कीजिए, लेट a decision be taken and then whole exam process be put in motion. Only by that way. And I think the basic issue again, I think we need to liberate ourselves from this pro-corporate elitist paradigm. It will eat away the vitals of our nationality and the economy. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Prem Chandra Gupta. आप या गुप्ता जी। माननीय, जिस प्रकार से यूपीएससी के एग्ज़ाम में हिंदी भाषी छात्रों के साथ जो एक भेदभाव करने का काम किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय, दुनिया के किसी भी देश में वहाँ की भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। आप चीन में जाएंगे तो ऊपर चाइनीज़ में लिखा होगा और नीचे अंग्रेजी में लिखा होगा, क्योंकि अंग्रेजी का बढ़ाना भी ज़रूरी है। आप फ्रांस में जाएंगे, आप जर्मनी में जाएंगे, आप किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ अपनी क्षेत्रीय भाषा को, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है। केवल हमारे देश में एक ऐसी स्थिति है कि जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनको विद्वान समझा जाता है, और जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको, जैसे मुख्तार नकवी साहब ने कहा, कि जाहिल समझा जाता है। ये बात आपने ठीक कही। देश के प्रधानमंत्री ब्राज़ील गए, उन्होंने हिंदी में बोला, उन्होंने हिंदी में बात की, और सब पूरे देशवासियों को अच्छा लगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री हमारी मातृभाषा में बोल रहे हैं। ये भी पता चला कि यूनाइटेड नेशंस में भी हिंदी में बोलेंगे, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। लेकिन हमारे देश में, अपने देश में जो दुर्भावना है हिंदी के प्रति, उसका क्या किया जाए? ये एक मानसिकता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। श्रीमान जी, जैसे नरेश जी ने कहा कि ये एक चिंगारी है, अगर इसको अभी मंत्री महोदय आप इसको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो खाली बात करने से काम नहीं चलने वाला, और ये चिंगारी बहुत बढ़ेगी, जो कि हमारे सब के लिए ठीक नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सब काम, इसमें कोई कमेटी या कुछ बिठाने की आवश्यकता नहीं है। जो कमेटी में बैठे हैं उनकी अपनी मानसिकता है, आप देश की मानसिकता को समझिए।
और इसको इमीडिएटली इस चीज़ को करेक्ट करिए और इसको हिंदी भाषा को या रीजनल भाषाओं का, जैसे हमारे नेता शरद यादव जी ने कहा, इस चीज़ को तुरंत इम्प्लीमेंट करवाइए। धन्यवाद। श्रीमती कनिमोझी। Thank you, sir. This issue actually is a very serious issue, and senior leaders like Charatji, when he spoke here, he has told us, like, for example, in Tamil Nadu, from 2010, like 122 candidates were successful in the CSAT exam. But when it is 2011, it's fallen to 68. It's just not the case of Tamil Nadu, it is the case for many states where other regional languages are spoken. You cannot leave out such a large portion of the country to represent themselves, to run this country as civil servants. The changes which has been brought about now actually leads to students only belonging to creamy layers, whether it is, because it actually helps only people who are very fluent in English, and of course students who are fluent in English and Hindi. When it comes to regional languages like Tamil Nadu, where many of the students who come from rural areas find it very difficult in these circumstances to write these exams because they are not that comfortable in English, nor are they comfortable in Hindi. So many of these students are left behind, and their aspirations are all killed because of these language issues. It is a very sensitive issue, and our leader, Dr. Kalaignar, has also written to the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, on 12/3/2013 about this issue, that regional languages also have to be considered and have to be taken into consideration when these exams are given. Translations, at least, if not all the languages, according to every state, if an exam is going to be conducted in Tamil Nadu, the question paper should be also in Tamil, and the students should be allowed to write in Tamil. Same can go for Kerala or other states which do not speak Hindi. So we have to take this feelings and take this into consideration, and in Tamil Nadu, it is a two-language system. We speak Tamil and write in Tamil, and English is also taken into account. So it is very difficult for students to be forced to write in other languages which they are not comfortable in. But we cannot. We are also part of India. I think we have a right to be part of the government, to be part of governing this country. So students from rural areas in Tamil Nadu and students who come from not so well-off backgrounds, who haven't been sent to English medium schools, cannot be left behind, and their aspirations cannot be killed. Please. So changes have to be made, Okay. and I think the government cannot now take a seat. work on such Okay, thank you. language divides. Sri D. Raja. Thank you, sir. Sir, the notification issued by the Union Public Service Commission has in fact created the uproar all over the country. And this notification needs to be reconsidered and withdrawn. Government must be prepared. Sir, language is a very sensitive issue, and language can unite people, language can divide people also. So government should treat very cautiously, and it should advise the Union Public Service Commission to treat cautiously. And as many members have suggested, as far as civil service exams are concerned, in the preliminary, there must be an option for those students, or it must be made mandatory that mother tongue should be given the priority, and all those who speak their languages must be given the opportunity to write the exams in their own languages. And I can suggest the languages in 8th schedule should be allowed for the preliminary in the civil service exams are concerned. And there must be level playing to all the languages. It should not be one-sided or towards, it should not tilt towards English, or it should not tilt towards Hindi also. And there must be level playing to all the languages. There it is better, we all should keep in mind the assurance. Online admit card to वापस करो. That's what I'm saying. We should keep in mind the assurance given by Pandit Jawaharlal Nehru
on this language policy. And right now, to face the present situation, I think that UPSC notification needs to be reconsidered, withdrawn, and all the regional language, I don't want to call it regional languages, they are all our languages, Indian languages, and every part should feel as part of the whole. And Subramania Bharati is part of our psyche. We hail from Tamil Nadu, and he only said Mother India, the Mother India, has 18 languages spoken, but our thinking is one. That's If okay. that is so, and I think the government should ask UPSC to withdraw the notification, Now sit and down. government should Now take your give seat. due Sri advice. Keshav Sri Keshav Rao. Which is nothing but a concern of the nation. Now they have been on agitation for last 2 weeks, and more so yesterday you have witnessed the violent turn of the entire agitation. So the issue is, I don't want to confuse or add to the tension. All that we are seeking is diffusion. Number one, I seek from the minister, since you want to study it, not the new thing you are doing, Navarkar report is right with you. It has suggested to you all the methods. I don't know why you are slipping over it. Such a serious study. Anyhow, since you are studying, let us not continue with the process that we have already taken up. Let us stop issuing of the hall tickets which I have uploaded yesterday. That will certainly diffuse, because I am just coming from them. They met me and I have asked them to meet you there in the afternoon. Sir, the question is two. It is not English versus Hindi. It is particular passage of English versus all the languages in the country. This is not, we are not allowed to write in our own examination as far as UPSC is concerned. We are allowed to write in any language we like, any regional language. Let it be. Two papers have been introduced since 2012. That is, in the name of CSAT, Civil Service Aptitude Test, in place of testing the aptitude of a boy, you are giving English passage and trying to test the aptitude of a boy. What all the regional language boys or Hindi boys are seeking is, give the passage in Hindi, so that we understand and we'll give you our aptitude, our initiatives. This is what all that they are asking. So what they are asking is level playing ground for them. At least it is all other language. Actually speaking, Mr. Sharad Yadav ji had given you a list. In that you will see, we are asking a level playing. It is the regional language boys, now particularly from the tribal areas, they have studied in their own language. Let them understand, comprehend in their own language. Once they assimilate what is written, then let them come and give their aptitudes. And what you are trying to ask is in English. And again, you are asking them to tell you their aptitudes in English. This is what exactly doing, but I don't want to add, because let the expert look into it. The Navarkar report is with you. Please meet the boys. There are many things. They are brilliant boys of this country. They are appearing for civil services. Let us not confuse the subject. It is about two subjects that have been introduced. What all I would request the minister, one is, please stop this uploading of the hall tickets. One, please sit in your committee, whatever committee you have appointed, see that it gets into action. Thank you. Thank you very much. Now, Sri Parida, Vaishnava Parida. सर, ये एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है भारत के लिए। हम लोग भारत का स्वाधीनता का संग्राम में देशवासी के सामने में वादा किए थे। अंग्रेज लोग जाने का बाद देश का शासन भारतीय भाषा में होगा, जनता का भाषा में जनता का शासन होगा। लेकिन हम लोग 47 से शुरू करके आज तक ऐसे हालत देश में क्रिएट कर दिए, जो गांधी जी बोलते थे अंग्रेजी एत को छोड़ो, वो अंग्रेजी एत को हम लोग स्ट्रांग करते करते अभी आए। और अभी ये एक बात हम बोलते हैं कि देखिए, सिर्फ ये यूपीसी का बात नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर का बात नहीं है। राज्य में, मेरे राज्य उड़ीसा में, वो जो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको बोलते हैं, वो एग्ज़ाम उड़िया में होने को नहीं दे रहे हैं। और उड़ीसा इज़ द ओनली स्टेट परहैप्स इन इंडिया जहाँ पर उड़िया में प्रशासनिक काज होता नहीं, वो अंग्रेजी में होता है।
ओडिशा के लोक प्रशासनिक सेवा, विचारालय का जो सेवा, ये सब चीज ओडिया में जनता को मिलता नहीं। अभी भी जिस अंग्रेजी में सब काम होता। 1954 में नवकृष्ण चौधरी जब चीफ मिनिस्टर थे, ओडिशा में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किए थे। एंड एट दैट टाइम इन इंडिया, इन अदर स्टेट्स ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड। द अंग्रेजी वाज रिप्लेस्ड बाय द लोकल लैंग्वेजेस। किंतु ओडिशा में वो एक्ट पास हुआ तक अभी तक वो कार्यकारी नहीं हुआ। इसलिए ओडिशा में हम एक आंदोलन शुरू कर दिए, अभी 2 साल से चल रहा, जो ओडिया भाषा मर रहा है। Unless you use the language will die, and if the language will die, your identity will also die. हम ओडिया है because I am speaking ओडिया, तो हमारा लैंग्वेज जब मर जाएगा ये मेरा आइडेंटिटी रहेगा नहीं। और इसलिए सेंटर से शुरू करके स्टेट तक सब प्रशासनिक काम काज, विचारालय का काज, सब कुछ होना चाहिए और एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन काज अपना लैंग्वेज में होना चाहिए। ये मेरे धन्यवाद। चेयरमैन सर, 2011 में सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। 2011 में यूपीएससी ने मतलब सी सेट, जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है उसके लिए सी सेट लगाई। ये कौन सी भाषा में पेपर लिखने का विषय नहीं है, ये विषय ये है कि सी सेट लगाने के बाद जो स्टूडेंट मतलब मराठी में, हिंदी में, तमिल में या अपनी लोकल लैंग्वेज में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जो लोग मतलब ये एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो 2011 के बाद लोकल लैंग्वेज में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई की है, वो लोग ज़्यादा यूपीएससी में फेल हो रहे हैं और उनकी संख्या कम होती जा रही है। और जो इंग्लिश में जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, जो आईआईटी से आए हैं और बड़ी उच्च शिक्षा से आए हैं, ऐसे स्टूडेंट उसमें ज़्यादा पास हो रहे हैं। तो इसीलिए मांग इतनी है कि सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, मगर सरकार ने मतलब जिस तरह प्रधानमंत्री जी हिंदी भाषा का हम ज़्यादा पुरस्कार कर रहे हैं, सभी भाषा के बारे में उनको आदर ही है, लेकिन ये स्टूडेंट जो है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करने वाले ज़्यादा फेल हो रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, कल लाठीचार्ज भी हुआ है। तो इसलिए सरकार से मेरा निवेदन ये है कि ये कमेटी का मामला बहुत बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक होता है मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम दे जाता है ये कमीशन, कमेटियाँ। तो इसीलिए अपनी सरकार फटाफट निर्णय लेने वाली है। इन्होंने जो गलतियाँ की है उस सुधारने का काम अपने ऊपर आ गया है। तो इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में हमको बहुत बड़ा आदर भी है और उनके कार्यकाल में निर्णय हुआ है, लेकिन निर्णय सरकार ने लिया और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये निर्णय कैंसिल करके सी सेट कैंसिल कर दीजिए, ताकि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS बने। तो वो लिखने का सवाल नहीं। तो इसीलिए मेरी मांग इतनी है कि निर्णय अभी अभी अनाउंस करो, कमेटी के पीछे मत लगो, नोटे कमेटी तुमको बर्बाद कर देगी। और इसीलिए आज आप निर्णय अनाउंस कर दीजिए। श्री विजय गोयल, only 2 minutes. I'm coming. No, before that I have 3 names from your. I'm calling. I'm coming. Coming. Sit down. Yeah, I know. No, don't raise question. I know, please. Don't raise questions. Yes. संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक प्रिलिमिनरी परीक्षा को लेकर हिंदी और भारतीय भाषाओं की जो उपेक्षा हो रही है, उसके लिए जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। ये केवल इसी परीक्षा की बात नहीं है, इस पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर देख लीजिए, हम सब लोग जो चुनाव हैं वो हिंदी भाषा में भाषण देकर या प्रादेशिक भाषा में भाषण देकर जीत कर आते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा भाषण यहाँ पर स्पीचेस जो होती हैं वो इंग्लिश के अंदर होती हैं। तो उन सब ने पूरे देश का ध्यान इस बात के लिए दिलाया है कि ये जो यूपीएससी के अंदर भेदभाव हो रहा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने सुओ मोटो स्टेटमेंट देकर इस बात को साबित किया है कि सरकार इस बारे के अंदर बहुत संवेदनशील है। सभापति जी, 2010 तक केवल 2 पेपर होते थे, जनरल स्टडीज का और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जिसमें से 23 सब्जेक्ट में से कोई भी परीक्षार्थी अपना सब्जेक्ट चुन सकता था। पर 2011 में सी सेट का जब ये एग्जाम आया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके बाद से ये समस्या खड़ी हुई। मुझे मालूम नहीं है
कि पिछले 3 सालों के अंदर भी ये आंदोलन चला और उसके बाद सामने वाली जो विरोधी पार्टी है उन्होंने इसका क्या संज्ञान लिया। पर अब उनकी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि सी सेट के अंदर जिस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, और दूसरा ये है इंग्लिश की से जो हिंदी में ट्रांसलेशन की जा रही है वो बड़ी कलिष्ठ है जी। जैसे हमारी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भी जो ट्रांसलेशन हिंदी में होकर आती है वो बड़ी ही कठिन होती है और कलिष्ठ होती है, इसलिए इस तरफ ध्यान दिलाया। इसलिए मेरा ये कहना है कि तुरंत इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ज़्यादा ये समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि एडमिट कार्ड आ गए लोगों के घरों में जी। अब ये भी नहीं मालूम है वो एडमिट कार्ड इसी समय पर आते हैं या इस बार जल्दी भेज दिए गए हैं, उसके कारण उन लोगों का आंदोलन तीव्र हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो मंत्री जी हैं जब अपनी स्टेटमेंट देंगे तो उसके अंदर सब कुछ स्पष्टीकरण हो जाएगा और सारा सदन क्योंकि साथ है तो इन विद्यार्थियों को राहत जरूर मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। श्री महेंद्र सिंह मेहरा, श्री महेंद्र सिंह। अच्छा, तो इनके इसमें वो था कि बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट ही। थैंक यू चेयरमैन। मेरा दूसरा नोटिस है सर। नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं, तो बैठिए, बैठ जाइए आप ना, आप बैठे। देन मिस्टर गिल, मिस्टर गिल। Thank you, sir. Thank you, sir. Please, please. Sir, this question of clarification is essentially becoming a question of language. India is a union of states. It's a union of many cultures, many languages, many ways of living life. And in Nehru's time, we have put a happy balance on it, which is working so far. But, sir, the reality is that there are 22 recognized Indian national languages. No language is prevalent over the whole country. Let's be clear. One language is a big group, which is Hindi, but they're only a big group. If you go to Kerala, if you go to Tamil Nadu, if you go to Amritsar, you can't talk to them. Yes, Hindi and Punjabi are close to each other. We can understand. Sir, one thing should be clear. The question is, in each state, everybody is using their own language now, all over. No problem. And that's the right way to do it. The question is, this union of many languages, which we all want, we all worship, we all like, let's not argue on that. And nobody worships it more here or there. We are all equal in this. The question is, how do you run the work of the union? I'm an IAS officer of the long past. How do you run the work of the union, the government of India? I cannot understand. I sat for IAS examinations and I watch what is going on, and I cannot understand it. If you have an exam in a vast number of languages, then you want the interview also in that language. Where are you going to find 500 UPSC members to talk to me in Punjabi? Punjabi will not be put in the back, nor will Tamil be, nor will Kannada be, nor will Assamese be, nor will Bengali be. They are as great as any other language, and all are great. So how are you going to do it? How do you moderate in selection? Is she better than me, or am I better than him? I don't know how they do it. I frankly am mystified. So therefore, I have sympathy with the minister. Please think hard and don't make political points here. We can all make them. And second, in running India, we will all get our share. It is not by but some mechanism, as my friend Kanimoi says, you know, we'll have a predominance of people from one section ruling over us. If we don't have Englishmen being collectors, we don't want others also. We want a share, a fair share. I look at Delhi also and Punjab share. I won't talk on it, but I know it. It's not only Mr. Sharad Pawar can put it up. Please. But I see it. Please. You can shout. Please, please. You can shout. I'm not impressed. You can shout. I can't understand. आप All of जितने you are मर्जी speaking. शोर करो. One of you. कांग्रेस अंग्रेजी चाहती है। आप जितने मर्जी शोर करो. लोगों ने इसका इसी बार नहीं, ये शोर करेंगे तो हम नहीं मानेंगे. No, they have to sit down. They have to sit down. No, time over. Mr. Chairman, they are used to
They are used to time standing is up. over. They are used to standing Mr. up and Gill, your disturbing. time is over. Naresh Agarwal Your is never time is disturbed. over. He has no business to disturb me. Your Huh? ना आप तो लोग बोलो ना, बैठिए। बोलो ना. This आप can't लोग be allowed. बैठिए। Mr. Chairman, Mr. Chairman, आप लोग Mr. बैठिए। Chairman, I can't understand. he cannot sit there and stop others from talking. He has to sit down. They can go on shouting. You I both will are talking speak. together. I don't understand. No, they can't have. This house does not belong to people sitting in front of you. I can assure you. नरेश जी, आप मेरे को लेक्चर नहीं कर सकते हैं. मैं आपको कभी नहीं करता हूँ. उन छात्रों के Sir, he is not more equal than the rest of us. बैठिए बैठिए। Sir, he is not more equal than the rest of Your us. time No, is over. You sit let down. me finish, but let him sit Your down. time is over. Sit down. Let him sit down. No, Let him LOP, sit LOP, down. sit down. LOP, Let him sit down. LOP, you Sir, sit down. let me LOP, finish. speak. He is Your time disturbing me. is over. Sit down. No, LOP, but then you एक won't चीज let me मैं come up सिद्ध again. कर देना चाहता हूं कि यहाँ ऑनरेबल मेंबर जब बोलते हैं तो अपने अपने व्यूज बोलते अरे, हैं पार्टी ये का कोई नहीं। पार्टी का व्यू नहीं है लेट इट बी वेरी क्लियर Not it. पार्टी का बाद में पूछना. पार्टी का उसका सुनिए चीफ पार्टी का बाद में पूछना. Sir, let me finish. चीफ विप ने अभी बात की थी Yeah. वो पार्टी का व्यू है हमें Sir, Okay, please. Sir, I will just finish. Your time is Sir, over. he What should is not it? have No, disturbed no. me. This He is has no business to unfair. disturb No, me. no. He should Everybody not spoke disturb 2 me. minutes. Why do you take I more will time? speak. Sir, the point is simply this. We should... No, No, so if बैठिए। he is going to carry बैठिए, on, then बैठिए। I am standing here. I am not going to sit down. Sit down. No, बाद में Okay. लेना. Now, please. नरेश जी, That is the problem. Sit नरेश down. जी, Now, राज्यसभा के ऊपर आपका हक नहीं है. आपका please, हक नहीं है. Please. Now, I ना want मिश्रा जी का है, मेरा भी हक है. Please. I will नरेश ask जी, you. आपको मेरे को सुनना No, पड़ेगा. So many please. Now, please. Please. जो मर्जी करें. Now, please. Keep quiet, please. क्या कह रहे हो Keep आप? quiet. So, see, this subject is very important. So, I have a number of names. With me now, there are half a dozen names, and other friends are raising the hands. There is only 10 minutes. So, I think we will now stop here and call the minister to. No, I have my here. No. Yes, I have half a dozen name here. Minister to reply. It's not possible. Minister to reply. Respected Chairman, sir. I already hear 6 names. आपने कहा है मेरा को नाम बोला है आपने ऐसा नहीं होगा बोलो शुरू कर Sir, yes. Before that, I got the names. बोलना शुरू करो नहीं तो नहीं मिलेगा So guys, all right, decide, okay. All right. Now, that means we will sit 15 minutes extra. You agree? Now, VP Singh ji, बैठिए. No, it is not. Why you want to say? Everybody knows of you. Why, please? पूरे सदन का जो भाव रहा है कि रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस मिले एग्जाम I have not called you. I asked you to sit down. Mr. Minister, please. Mr. Sir, why? No, you can. You sit down. Let the minister reply. Respected Chairman, sir. हम सारी भाषा में बोल देंगे सब बोले I have 1 dozen names. 1 dozen names. That is the problem. चलिए 1 dozen names here. एक सालों में क्या हो गया पहले दिया नाम गया. मैं क्या करूं? I'm speaking. हम बोलने लगे Sit down. What can I do? I cannot accommodate all. I am telling you. I cannot accommodate all. आदरणीय सभापति महोदय मंत्री बोलिए.
बोलिए बोलिए। देखिए इतनी उत्तेजना है मंत्री, तो please। उसी के विषय में बोल रहे हैं। बोलिए। आदरणीय सभापति महोदय and respected chairman sir, I had the privilege of making a statement in this August House on the 18th of July, and I stand before you today for a clarification following this discussion. मैंने बड़े ध्यान से ये सारी बातें सुनी, हिंदी में भी बोलूँगा, अंग्रेजी में बोलूँगा, यदि आप आदेश करेंगे तमिल में भी बोलूँगा, डोगरी में भी बोलूँगा, पंजाबी में भी बोलूँगा, उर्दू में भी बोलूँगा और कानी मोदी जी तमिल में भी बोलूँगा। परंतु कहने का अर्थ ये है, दिस इज हाउस ऑफ एल्डर्स, आई एम हेयर टू लर्न फ्रॉम यू एंड टू ओबे यू। और अच्छा लगा, बहुत सी बातें ध्यान में आ गई, आपने याद दिलाया तो याद आया। बेरोज़गार में हो गया, क्योंकि पहले डॉक्टरी करा करता था, अब यहाँ से बेरोज़गार करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो कृपा करके थोड़ा समय दे करके इतनी उदारता दिखाइएगा हम पर, वेरी गुड, कि ये भी काम ना छोड़ जाए तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर उन्हीं बच्चों की तरह बैठना पड़ेगा। सो चेयरमैन सर, at the outset I just have to say that the government is absolutely aware of what is happening. ऐसा नहीं है कि सरकार को चिंता नहीं है, संवेदनशीलता भी है, सहानुभूति भी है, and we are looking at it with all the sympathy, all the seriousness, all the sensitivity at our command. जो कुछ यहाँ पर बातें आई हैं, मेरे ख्याल से उसमें बहुत अधिक विवाद भी नहीं है, लगभग सहमति है। कुछ एक चूँकि अब मुझे ये दायित्व दिया गया है यहाँ खड़े रहे होकर के आपको संबोधित करने का, और पिछले 4 सप्ताह से जब से ये आंदोलन चल रहा है तो दिन रात इन बच्चों के साथ बैठना भी है, संपर्क भी है, थोड़ा शोध भी करना पड़ा, स्वयं भी अध्ययन करना पड़ा कि ये विषय क्या है। कुछ एक बातें हैं जो बीच में छूट रही हैं। हुआ ये था कि 2010 ईस्वी तक एक अलग पैटर्न चला करता था। मैं थोड़ा समय लूँगा, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। एक प्रीलिमिनरी इम्तहान होता था परीक्षा और दूसरा मेन, एंड इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम वी हैड 2 पेपर्स, one of 150, the other one of 350, और जो दूसरा था उसमें लगभग 2250 अंकों का इम्तहान होता था, जिसे आप मेन परीक्षा कहते थे। फिर कहीं ये सोचा समझा गया कि ये जो प्रीलिमिनरी परीक्षा है इसको थोड़ा सा सरल बनाया जाए, इट कुड बी मेड लिटिल मोर सिंप्लीफाइड इन अदर वर्ड्स। तो इसके 2 जो पेपर थे, दोनों परीक्षा पत्र 200 अंकों के कर दिए गए, और जो मेन परीक्षा थी उसके 9 पेपर हैं। कुल मिलाकर के अंकों की संख्या है 2050। निवाक्यकर समिति का उल्लेख किया जा रहा था। अनेकों समितियां हैं, मैंने सारा अध्ययन किया, कोठारी समिति से लेकर निवालकर तक, अलग तक। उसके आधार पर क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये जो मेन परीक्षा है उसमें जो 2 पहले पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर कहे जाते हैं। 30, 35, 40% उसमें क्वालिफाइंग होता है, उसमें एक ज़रूर अंग्रेज़ी का भी होता है, और दूसरा जो पेपर है वो किसी या हिंदी या किसी भाषा में, ऑप्शनल भाषा में उसको आप कैंडिडेट को करने का एक स्वतंत्रता रहती है। जो ये प्रीलिमिनरी परीक्षा है, इसके 2 पेपरों में से जो दूसरा पेपर है 200 अंक का, उसमें 2010 तक तो वैसे ही चल रहा था। 2010 के लगभग एक सुझाव आया, एक अलग कमेटी बनी, अलग उसका नाम था समिति, और उसके सुझावों के आधार पर उस समय ये समझा गया, मैं नहीं था समझने वाला, ना हम में से कोई था, और ये निष्कर्ष निकाला गया कि 22 अंकों का एक प्रश्न होना चाहिए उसमें, एक प्रेसी टाइप, जो कहा गया कि ये 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड का होता है। एंड इन ऑर्डर टू मेक इट लैंग्वेज न्यूट्रल एज दे थॉट एट दैट टाइम, इसमें लिखना कुछ नहीं है कैंडिडेट को, ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रेसी दे दी गई। द चेयरमैन सर इज सिटिंग हियर, ही इज नाउ ऑर्डरिंग दिस, और फिर नीचे सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
which of the following is true. You just have to mark it so that you don't even have to write it. It is more of English comprehension rather than English expression or English essay. And the reason given then by those who thought it was so, I'm not subscribing to any of these views. I'm just putting forward an impartial view because I'm myself a medical practitioner, so I'm taking into cognizance that all the elder members have said. They thought this was essential to have certain basic working knowledge of English. Rightly or wrongly, that was their understanding of the issue. अब ये हो गया तो 2011 से ये पद्धति आरंभ हो गई। 2011 भी बीता, अब क्यों नहीं किसी ने उस समय इसका विरोध किया, या हुआ तो प्रभावी विरोध नहीं हुआ, या आंदोलन नहीं हुआ जिस प्रकार का आज हो रहा है। ओके, no, I'm not accusing anybody. I'm not here. I said I'm here to learn because I'm already researching this subject, so I'm going back with very worthy inputs, both about the subject as well about myself, about the 3 digits and all those things. So I'm glad that I'm not one of those whose number of bytes go into 3 digits. Anyway, coming back to the subject, I'm just trying to put the record straight, and we'll go we'll take absolute cognizance of the wishes of the House. कोई विरोध नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई उपद्रव नहीं हुआ। ये फिर विषय आया कैसे ध्यान में? विषय इसलिए आया कि एक PIL दायर की गई, दीनानाथ बत्रा एंड अदर्स, 2012 में, और यदि ये PIL दायर ना होती तो शायद तब भी तत्कालीन सरकार इसका संज्ञान ना लेती। I'm not saying anything between the lines. It is for all the worthy members to draw their conclusions. In 2011, the cognizance of this issue was taken only after there was a High Court judgment following a PIL by Batra and others. और उस उच्च न्यायालय के निर्देश के अंतर्गत 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, क्योंकि उस न्यायालय के निर्देश में इस PIL ने यही विषय उठाए, यही बिंदु उठाए जो आज आदरणीय सदस्य उठा रहे हैं। उस निर्देश के अंतर्गत सरकार ने एक 3 सदस्यीय समिति गठित की। उसके 3 सदस्यों के नाम थे अरविंद वर्मा, RK गुप्ता, PK दास। ये उस सरकार ने की और वो तिथि थी 12 मार्च 2014। अदालत उच्च न्यायालय की भावना का संज्ञान लेते हुए चेयरमैन साहब बैठिए, तो ये समझ लीजिए कि आंकड़ों सहित जिस तरह से भारतीय भाषाओं के बच्चों का यहाँ तक हाल हो गया कि जो अंग्रेजी वाले बच्चे उनको दुगने हो गए, और वो इनके ज़माने शुरू हुआ और आपके ज़माने में भी कंटिन्यू हो रहा है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इतने विस्तार से ये सब हमको जानकारी, इतने विस्तार से ना जाकर ये जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू हो गया, इस पर जल्दी आ जाइए। मैं उसी पर आ रहा हूँ। The idea of putting the विस्तार जरूरी है। Now Vijay Goyal, please. Minister is replying, please. You don't reply. नहीं, I accept your advice. I'm coming to that. कहने का तात्पर्य केवल ये था कि 1 मास का अंतराल दिया गया था इस कमेटी को, 1 मास का। The committee was expected and was asked by the then government to submit its report within 1 month, which it did not give, and the committee was given an extension of 3 months, by which time, incidentally, there was a change of the government. अब हम आ गए, हमारे हिस्से ये विषय भी आ गया, बेरोजगारी भी आ गई, सरकार भी आ गई, इसे छुड़वाइएगा नहीं, आपकी कृपा से मिल गया, और अब ये आंदोलन भी आ गया। अब हुआ ये, आई एम पुटिंग इट वेरी स्ट्रेट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर। अब क्या है कि हमारे पास कोई, देयर वाज नो अदर ऑप्शन नाउ लेफ्ट टू अस, सो व्हाट टू डू नाउ? ऑल दैट वी कुड डू इज, ये समिति कहने लगी कि साहब हमारे जो 3 महीने थे वो तो समाप्त, हमने इनसे कहा भैया रिपोर्ट दो, बोले हमारे तो 3 महीने समाप्त हो गए, या तो हमें एक्सटेंशन दो या हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। अब you see the kind of fix in which we were caught, which we were totally, unaware of or not actually prepared for it.
अब क्या हुआ कि हमने इस समिति को कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं, परंतु आप तुरंत इसकी आप रिपोर्ट हमें दीजिए, बिकॉज वी कुडंट हैव स्ट्रेट अवे गॉन एंड डिमोलिश दैट कमेटी और सस्पेंड। हाँ सुनिए ना, हाँ मैं बताता हूँ। टाइम बाउंड हमने, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए तो वो समय दे दिया, परंतु अब उसके बाद जब ये आंदोलन तीव्र गति पकड़ने लगा तो एक लिखित रूप में उनको एक पत्र लिखा गया और उन्हें कहा गया कि आप एट द अर्लीस्ट ये रिपोर्ट भेजिए ऑन द अर्जेंट बेसिस। आप बात सुनिए, देखिए अब अभी हम आज फिर उस समिति को हमने ये कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर आप हमें इस रिपोर्ट को उपलब्ध करें। अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अब ये रिपोर्ट किस प्रकार की आएगी उसके आधार पर अगली रूपरेखा भी तय हो सकती है। मेरी आप न्यायालय भी जा सकते हैं। हाँ, जाएंगे, ठीक है। मैं आप माननीय जी मुझे केवल 2 मिनट दीजिए, उस पर मेरी सारी मेरे ऊपर आ जाएगी। सिर्फ 2 मिनट आप सभापति ये सारा क्लियर। Please listen to the reply. You just required 2 Please minutes. listen to the reply. I am coming to what the honorable members is saying. Yes. Sir, I am No. Please listen to the reply. अब हमने उनसे कहा है कि सप्ताह भर में हमें आप रिपोर्ट दीजिए। अब रिपोर्ट कैसी होगी उसके आधार पर हम उसका संज्ञान लेकर के यदि ऐसा लगा कि उसमें फिर भी कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशंस की आवश्यकता है तो वी कैन इवन देन डेलिब्रेट ऑन दैट रिपोर्ट। अब दूसरी बात, अब ये आ गया विषय एडमिट कार्ड का। चिंता तो है, हुआ क्या है कि कल विद्यार्थियों को, पहले ये अनशन पर बैठे थे कुछ एक विद्यार्थी, बड़े कठोर प्रयास के साथ इनसे वो अनशन तोड़वाया गया आज से कोई 4 दिन पहले, और सभी सदस्यों की सभी जी Now please. सर मंत्री जी को बोले दिया नहीं, मैं No, he has yielded. What can I do? don't take cognizance. He has yielded. I don't yield. Let me finish. If he has मैंने yielded, what बहलाया can I do? फुसलाया नहीं, हमने जज्बात निभाए हैं असूलों की जगह। 3 रात हम वहां बैठे और जब उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा तो मैंने उन बच्चों को कहा, बेटा आप तोड़ो कि ना तोड़ो, हमारा अनशन हो गया। We have taken it very sincerely because I myself been a teacher for almost 25-30 years. Now please let him reply, please. अब ये No, please allow him to reply. Don't interfere and intervene. Chairman sir, then what happened now is that yesterday's instigation came from this admit card. हम आपके माध्यम से उन विद्यार्थियों को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाया भी that the two issues need not be correlated. एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो यूपीएससी का एक कैलेंडर है उसके अंतर्गत हुआ, जिस प्रकार से कि एडवर्टीजमेंट इशू की जाती है, परीक्षा की तिथि निश्चित की जाती है, एडमिट कार्ड की तिथि निश्चित की जाती है। दिस इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड विच हैपेंड यस्टरडे इज नॉट इन एनी वे गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। That's very clear. Yeah. अब इसके बाद That's clear. मेरी बात सुन लीजिए। Now let him complete. मैंने नहीं इशू किया, फिर गलत हो रहा है। No, I want to put the I want to put the मंत्री को समाप्त करने दो। Chairman sir, the card has not been issued by us. It has been issued by UPSC, which is a separate body which follows a calendar. The date of 24th August has been carrying on for years together. That was not decided by the present government. Anyway, coming back to the point. So that issue of admit card, all that I can assure you, sir, is not going to influence the further course of action. अब जैसे कि कमेटी की बात आई है और जैसे स्टूडेंट्स का है, ऐसा भी नहीं है कि वी आर नॉट इन पर्सनली इन टच, हम उनके साथ हैं, और बल्कि मैं तो सभी वर्गों के, सभी पार्टियों के सदस्यों को लेकर के भी उनके साथ संपर्क बनाए रखे हैं। आई वुड रादर नाउ अपील टू यू एंड और ये जो 2013-14 की मैंने ये बात इसलिए की थी कि ये कुछ एक ऐसे इसमें विषय हैं, ऐसा भी ना लगे कि ये विषय, ये जो समस्या है ये हमारा क्रिएशन है, परंतु जिसका भी है समाधान करना तो हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। और सब मिलकर के मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा सभापति जी के माध्यम से कि हम इन बच्चों से ये अपील करें कि वो अनावश्यक अपने आप को किसी शारीरिक मानसिक क्लेश में ना डालें। हमें उनसे सहानुभूति है। वी आर लुकिंग एट देयर प्रॉब्लम विद ऑल द सीरियसनेस ऑफ इट।
मैं Why you interrupt? He is very clear. He is. Let him. परीक्षा की तिथि सुनिए, आप लोग सुनिए। मैं एक बात कह, चेयरमैन सर आप लोग सुनिए। चेयरमैन नो यू लिसन, सुनिए पहले। आप सुनते नहीं है, फिर क्या करूं? सभापति जी सुनिए। सभापति जी आप लोग बैठिए, सुनिए। सुनिए, आप लोग सुनिए। I'll be forced to adjourn the house. That's the only way. I'll be forced to adjourn the house. Yeah. मंत्री खत्म करो। सभापति जी मैं 2 वाक्य कह करके बात समाप्त करूंगा, because there is no point being repetitive. मैंने ये कहा कि ये जो परीक्षा की तिथि है 24 अगस्त है। अब किसको पोस्टपोन करना है? अरे अभी मैंने जब आपको आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर हम इसका संज्ञान लेकर के एक निर्णय करेंगे और आगे की रूपरेखा उसके आधार पर होगी। और दूसरी बात, लेट मी अश्योर यू सर, आई माइसेल्फ एम नॉट इन फेवर ऑफ, नीदर द गवर्नमेंट इज इन फेवर ऑफ एनी इनजस्टिस हैपनिंग टू एनी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, के भाषा के आधार पर किसी भी विद्यार्थी वर्ग से कोई पक्षपात हो, अन्याय हो, सरकार इसका कदापि इस पर समर्थन नहीं करती। एंड वी डोंट विश टू लिंक लैंग्वेज विद स्किल। धन्यवाद सर। House is adjourned to meet at 2:30 p.m. 2:30 p.m. adjourned to meet.